Hello everyone, welcome back to Sports Covery, and we're here for an interesting episode. With me are the team of Call of Duty Mobile from Godlike Esports. Got with me Learn Gaming, Abhiz, Prevail, and Neutrino. Guys, what's up? First of all, how are you doing? And yeah, how is it like to sort of be on a podcast and not playing sort of your regular esports in front of the screens? काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि गेम में तो यार हम लोग अच्छा खेलते ही हैं, लेकिन रियल लाइफ में भी एक पर्सनालिटी होना, लोगों को पता चले, लोग हमसे सीखे, तो यार एक बहुत प्राउड मोमेंट है। तो यार बहुत खुशी की बात है हम लोग के लिए। Oh, sweet. Thanks, Learn Gaming. Abhi's, where did sort of Call of Duty start for you? How did it start, especially on the mobile phone? So I played a bit of Call of Duty. I mean, not even close to what you guys are doing, but yeah, here and there. But where did it sort of start for you? Did it start when you were in sixth standard, seventh standard, or later on in life? I started playing Call of Duty as soon as it released. मतलब 2019 में release हुआ था Call of Duty. At that time, I was in my 11th, I guess, 11th standard में था. So that time I started playing Call of Duty. I came from games like PUBG. तो mobile gaming में interest तो काफी था ही, पर and then there was a new game that was popping up, Call of Duty करके, and I thought let's give it a shot. So that's how I started playing Call of Duty. Interesting. Well, how does Call of Duty sort of differ from your other games? You have Free Fire, PUBG, and all these other first-person shooters as well. But how is this different, or what is it about Call of Duty that makes it different? अमीन एंड मतलब कॉल ऑफ ड्यूटी में देखो 5v5 है और अगर समझो कोई और मतलब बैटल बैटल रॉयल गेम खेलते हो तुम तो वो बहुत स्लो पेस गेम है। पर अगर तुम कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हो 5v5 है तुम्हें मतलब कांस्टेंट फाइट्स लेनी पड़ती है। ऐसा दूसरे गेम्स में आपको नहीं मिलेगा। कांस्टेंट फाइट्स, कांस्टेंट कोऑर्डिनेशन रहता है, कांस्टेंट टीम प्ले रहता है। तो कॉल ऑफ ड्यूटी में मतलब ऐसा गेम है जो फास्ट पेस्ड है और उसमें बहुत सारे ऐसे डिफरेंट मोड्स है जो खेलने मिलते हैं। और कॉल ऑफ ड्यूटी में 3 मोड्स होते हैं जो कॉम्पिटिटिव में खेलते हैं। वैसे हाँ, फिर कह सकते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी इज अ मोर फास्ट पेस्ड गेम। आप थोड़ा elaborate करेंगे because I think a lot of the listeners don't know what say battle royale is or the different game modes in Call of Duty. So can you tell us a little bit more about what the game modes are or what uh, sort of a battle royale is? So in Battle Royale, right, it's a different genre of game. So in that, there are like 100, 200 players in a single map and a match. So these 200 players fight for the first place. So the map is very large in those type of games. So it's a long game. Like one game lasts for an hour or something. But Hmm. when you come to Call of Duty, there are like 3 different game modes which are played in competitive. So one of them is Hardpoint, one of them is Control, and one of them is Search and Destroy. So in Hardpoint, there's a space for like 60 seconds in different places of the map. So any team which comes to that place starts getting points, and when you rack up those points, you win the game. And when it comes to Control, there are 2 different places on the map. So you have to capture those places, and one team defends the place and one team attacks the place. And those team change after every round. Like the attack team goes to defense and the defense team goes to attack. So there's that for Control. And in Search and Destroy, it's basically like Counter Strike. If people have played Counter Strike, they know like you have to defend the bomb and plant the bomb. So it's the same in Call of Duty. It's just that it's very fast paced, you can say. So that's it. Okay. The Okay. maps are very small compared to what you can see in PUBG or Free Fire, and there are a lot of maps. बहुत ज़्यादा map pool है. मतलब in our game we play on 13 different maps. Veto होता है और उस हिसाब से we select map. Unlike battle royales where सिर्फ 2 या 3 या 4 maps रहते हैं. And our each game mode, as he said that there are 3 game modes in competitive. हर एक गेम मोड lasts for an average of 10 minutes, 10 to 12 minutes, depending on how close or how one sided the game is. अगर क्लोज गेम है तो थोड़ा लंबा चलता है, अगर वन साइडेड जीत रहे हैं तो थोड़ा कम चलता है, बट बेसिकली दैट इज हाउ इट इज. सो जितने में हमारा एक बेस्ट ऑफ 5 खत्म हो जाता है उतने में बैटल रॉयल का एक मैप खत्म होता है बेसिकली. Oh, okay, okay. या Crazy. Okay, fine. I mean that sort of gives perspective also as to how long these two versions are. That's एग्जैक्टली. okay. Yeah. Neutrino, coming to you, I mean, when did it sort of occur to you that you guys can probably start taking this up professionally or sort of playing it competitively? Was it always there or did it come after a point? तो ये कैसा हुआ? नहीं, मेरे लिए तो पहले से था, क्योंकि मैं जो कॉम्पिटिटिव हूँ वो मैं ये गेम से नहीं हूँ, बहुत पहले से हूँ। मैं 2016 में मोबाइल गेम स्टार्ट किया था कॉम्पिटिटिव। पहले क्रिटिकल ऑप्स करके गेम थी जिसमें मैं और
1 साल साथ में खेले थे, उसके बाद हमने पबजी कॉम्प भी खेला था 1.5 साल तक कॉम्पिटिटिव, पबजी और मैंने और लन ने। फिर मैंने गुज्जू फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ, तो मैंने गेम बंद कर दिया क्योंकि फैमिली प्रेशर दे रही थी। तो मैं फिर धंधे में और ये सब पापा का बिज़नेस था उसमें चला गया था और गेमिंग मैंने बंद कर दी थी क्योंकि पबजी तब मोबाइल इंडस्ट्री इतनी थी नहीं। क्योंकि मोबाइल इंडस्ट्री जो बूम हुई है वो कोविड के आसपास एरा में हुई है। मैं बात कर रहा हूँ उसके पहले की। तो इतना कुछ था नहीं, तो इसलिए मैंने बिज़नेस में चला गया था और ये सब मेरा पैशन था। काउंटर स्ट्राइक से खेल रहा था, लेकिन इतना अर्निंग और ये सब नहीं था, तो मेरे को छोड़ना पड़ा क्योंकि मैं 20 एज का हो गया था। तो उसके बाद मेरे को देखना पड़ता है कि किस में पैसे मिल रहे हैं, क्या है ये सब। तो मैंने बिज़नेस चालू कर दिया था। उसके बाद जैसे ही कोविड आया, तो कोविड में फ्री टाइम में मैंने सोचा लाओ कॉम्पिटिटिव वापस शुरू करते हैं, और तभी लन का मैसेज आया था कि कॉल ऑफ ड्यूटी करके एक गेम आई है। जो हम प्रीवियस गेम खेलते थे 5v5 जो क्रिटिकल ऑप्स थी, वैसे ही सर्च एंड डिस्ट्रॉय वाला जो गेम मोड है उसमें है, और बहुत अच्छी गेम है, तो तू ये ट्राई कर फ्री टाइम में। और वो हमने खेला, मैं खेला, फिर मेरे को कॉम्पिटिटिव तो पहले से ही मैं था, मेरा माइंडसेट। तो हमने फिर उधर से टीम तो पहले से बनी हुई थी, मैं ज्वाइन हो गया, फिर हमने वर्ल्ड कप खेला और ऐसे ही जर्नी चालू रही। Okay, okay. I mean, learn. Not a lot of parents are very sort of like they don't understand when a kid says, "Oh, I can do this professionally. I can make money out of gaming. I can play for an esports team." It doesn't. So at least where I come from, South India, at least the sort of mindset is okay. You go finish 12th, do your engineering, do your law, doctor, whatever, and do that and do live your life. But when kids sort of explain, it's really funny because parents don't get it at all. Did you guys face what sort of difficulties did you face? Were your parents able to understand it quickly that you can pursue gaming? मैं भी गुजराती फैमिली से हूँ, सो फैमिली तो कभी सपोर्ट नहीं करेगी गेमिंग को लेके। मेरे को तो भाई बहुत मारा पीटा भी है क्योंकि गेमिंग में बहुत एडिक्टेड हो गया था। एक टाइम था कि मुझे सिर्फ गेमिंग ही करनी थी लाइफ में। तो लेकिन एक चीज है कि देखो, पेरेंट्स की सोच सही है। पेरेंट्स चाहते कि बच्चे का फ्यूचर स्टेबल हो, बच्चे स्ट्रगल ना करें, क्योंकि उन्होंने स्ट्रगल किया है। तो उनके Hmm. पीओवी से मैंने क्या किया कि मैंने गेमिंग तो नहीं छोड़ी, तो मैंने शुरू किया, मैंने पढ़ाई भी की, ठीक है। मैंने पढ़ाई 11th 12th किया, साथ में रात को गेमिंग करता था। तो सोता कम था क्योंकि यार स्ट्रगल तो करना पड़ेगा अगर तुम्हें दोनों चीज करनी है। पढ़ाई के बाद मैंने जॉब की, तो जॉब करते करते मैं गेमिंग फिर करता था रात को। फिर एक टाइम ऐसा आया गेमिंग में कि भाई मुझे गेमिंग से मेरी जॉब से ज्यादा हर महीने पैसा मिल रहा था। तो मैंने गेमिंग में प्रूव किया, और मैं रात को 3 3 बजे सोता था, सुबह 7 बजे उठ के जॉब जाता था। तो भाई डार्क सर्कल्स भी बढ़ गए थे, हेल्थ थोड़ा इश्यू हो गया, लेकिन यार हर किसी की लाइफ में एक स्ट्रगल पीरियड आता है। तो यार जॉब से जब ज्यादा पैसा मिलने लग गया, तो यार पैशन तो था ही सालों से, तो दिल पे हाथ रख के सब कुछ छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ दी मैंने, जॉब भी छोड़ दिया, फुल टाइम गेमिंग में चला गया। तो ये चीज है कि एक सिक्योरिटी है कि मैं खुद का खर्चा खुद से उठाया, साथ में स्ट्रगल किया। तो पढ़ाई और जॉब अगर आप करते हो तो ये सब मत छोड़ो। जब तक आपको गेमिंग में कुछ अचीवमेंट नहीं अनलॉक होता, कि आप मेहनत करके आप खुद को इतना काबिल नहीं समझते हो, तब तक आप उसको फुल टाइम परस्यू मत करो। तब तक आप, गेमिंग ऐसी चीज है ना भाई कि भाई काम करके आए, रात को चिल करने के लिए खेल सकते हो, एंजॉय करने के लिए। जिसको कम्पीट करना हो कम्पीट करने खेल सकता है भाई, जिसको कंटेंट बनाना हो कंटेंट बना सकता है। सो यू कैन डू इट अलॉन्ग विथ योर नॉर्मल रूटीन। बस ये है कि स्ट्रगल करना पड़ेगा इफ यू वांट टू अचीव, क्योंकि यार अगर बेस्ट बनना है तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। सो दिस इज माय लाइफ जर्नी, और आई थिंक इससे काफी सारे आपको आंसर मिल चुके होंगे। Yeah, fair enough. Abhis, but how do you sort of get into professional gaming? I mean, how do you join an esports team? Because not a lot of people know where to even start. So how do you go about it? बेसिक है कि देर इज लाइक कॉन्करर इन पबजी, सो उसी कंटेक्स्ट में देर इज अ लेजेंडरी रैंक इन कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, तो दैट इज द हाईएस्ट रैंक दैट यू कैन रीच। उधर जाओ, टॉप 100 टॉप 200 वाला लीडर बोर्ड ग्राइंड करो, तो पीपल विल रिकग्नाइज यू कि देर इज समवन हु इज ग्राइंडिंग द गेम अलॉट और इसको कॉम्पिटिटिव में आना है, तो पीपल विल रिकग्नाइज यू। और अगर कोई बनी बनाई टीम होगी एंड इफ दे नीड अ प्लेयर दे कैन अप्रोच यू फ्रॉम देयर, ऐसा। पर इफ यू वांट टू स्टार्ट योर ओन ई स्पोर्ट्स टीम, यू कैन पार्टिसिपेट इन डिफरेंट टूर्नामेंट। डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो, किसी का भी, कोई भी एक अच्छी पर्सनालिटी का इंडिया में जो भी कॉल ऑफ ड्यूटी खेलता है उसका डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो, हमारा किसी भी दूसरे जने का। यू कैन गो देयर, यू कैन ask, you can make your own team, you can register in tournaments जो भी होते हैं, अंडरडॉग्स के लिए भी टूर्नामेंट्स होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती है हर एक बंदे को अपने आप को प्रूव करने की। तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम डाउन देयर, और उधर से धीरे धीरे आप टूर्नामेंट्स जीतो, थोड़ा आगे बढ़ते जाओ, खुद का नाम बनाओ, खुद की टीम का नाम बनाओ,
and people will eventually start recognizing you from the T1 community, and there you can enter and play the big tournaments. You can prove yourself. You have to prove yourself first. That's the catch. खुद का मेहनत करना पड़ेगा, prove करना पड़ेगा, and then you can go. Okay. Prevail, of course, you guys are in a team, and of course, there must be a lot of teamwork involved when you're playing together. How is it sort of different from, you say, natural sports or sort of your normal games? How is it different on a virtual platform to talk to your teammates and to communicate with them in the right way while playing Call of Duty? I mean, it's my personal opinion, but I believe in esports, it's more of a mental stress to play the game at a competitive level, right? So when you play at an international level, there's a lot of stress. Like if you play a match against a hashtag burn team in the world, which was LG this year, it it's not a cup of tea for everyone, right? I believe mental stress is a most important factor in esports, and you have to like have a very good mental fortitude to play at an international level and compete. So I think communicating with teammates is a thing which you can learn over time, and Hmm. it's a kind of a hard task to have build synergy with your teammates, and play at an international level requires hell of a synergy, because in a game like Call of Duty it's like very fast paced, and if you even like lose one sort of synergy with your teammate, it's like a loss for you. So I believe, yeah, so in esports mental fortitude plays a huge thing. और जैसे कि आप देखते हो कि मतलब बाकी स्पोर्ट्स है, जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, और जो बाकी के मतलब जो रियल लाइफ स्पोर्ट्स है, तो उसमें भी आप देखोगे तो फिजिकल ट्रेनिंग चाहिए होती है। तो सेम वे हम लोग भी अपनी फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं रिफ्लेक्सेस से। सो हम उठते हैं, हम अपनी गेम में एम ट्रेनिंग करते हैं। सो ट्रेनिंग ग्राउंड होता है गेम के अंदर। सो उंगलियों के रिफ्लेक्सेस, मसल मेमोरी बनाना, ये सब छोटी छोटी चीजें होती है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी गेम है मेंटल गेम। तो मेंटली बाकी स्पोर्ट्स से हम लोग की गेम में स्ट्रेस भी ज्यादा है, क्योंकि हम लोग का जो गेम है ना, आप एक सेकंड में स्पॉन हुए, क्विक डिसीजन रहता है कि भाई क्या करना है, अगर गलत किया तो गलत, सही किया तो सही। तो बहुत कम टाइम मिलता है, और इसकी वजह से आई थिंक हम लोग को रियल लाइफ में भी ना हेल्प मिलती है कि हम लोग का ये बैक ब्रेन जल्दी सोचता है, क्विक क्विक डिसीजन लेता है। Okay, okay, Yeah. interesting. Of course, like you said, there is sort of pressure, and when you play big tournaments, like you guys did in the World Championships last, and you finished runners up in 2023, there must have been some nice incidents or anecdotes. Can you tell us some stories from the tournament, and how was your experience? स्टोरी स्टार्ट होती है 2022 से, जब मैं लर्न और ट्रंक्स गए थे और हम लोग #13 #14 आए थे हम लोग। और तभी से हमने डिसाइड किया था कि हमें जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो खुद को प्रूव करना है कुछ ना कुछ ऐसा, और हमने जैसे ही हम इंडिया में एंटर किए, मतलब उतरे, उसके बाद ही हमने शुरू कर दिया था ग्राइंड हमारा। हमने टीम चेंजेस किए, अभीस को लिया, प्रिवेल को लिया, स्कल गाय को लिया, हमने कोच लिया, हमने स्ट्रेटजीज बनाई, और जो प्लान हमारा जो पाथ था वो क्लियर करा और उस पर वर्क करने लगे। तो जब हम WC 2023 में गए तो सबसे पहले हमारा, मेरा और आई गेस मेरा हो सकता है और शायद लन का हो सकता है, इन सब का नहीं हो सकता, बट मेरा और लन का तो एक ही गोल था कि एटलीस्ट एक मैप तो जीतना है, क्योंकि पिछले साल हम कुछ भी नहीं जीते थे। हम कोई भी मैप नहीं जीते थे, वन साइडेड हार के आए थे। तो पहले, क्योंकि होता है ना कि एक छोटा छोटा गोल बना के चलो, एकदम बड़ा तो सोचना है, गोल अपना बड़ा रखो, लेकिन जो पहले पहले आता है उसको क्लियर करना आता है। तो स्टार्टिंग के फर्स्ट दिन तो उसमें भी पहला मैप हम पहला जो मैच था खगेंद्र के सामने वो हार गए। तो मेरे को कहीं न कहीं ऐसा, मतलब एक मोटिवेशन आई थी, और लन को भी मैंने बोला था कि यार मैच हारने न तो नहीं है, क्योंकि पूरे साल हमने बहुत मेहनत की है। ये साल जितनी हमने मेहनत करी है ये 1 साल में, उतना हमने 3 साल मिला के किया था कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल। ये ट्रू है, मतलब स्मार्ट ग्राइंड एंड हार्ड ग्राइंड का मिक्स करके। पहले हम Okay. हार्डकोर ग्राइंड करते रहते थे, सीखते नहीं थे। आज जो चीज़ करी वही गलती फिर से कर दी, ऐसा-वैसा। तो ये इस 1 साल में हमने बहुत मेहनत किया। तो खगेंद्र के सामने हारने के बाद फिर हमने खुद को मोटिवेशन दिया, क्योंकि मेंटल हेल्थ है, बराबर पॉजिटिव रहना पड़ेगा। वो एक खगेंद्र के सामने हारे तो वो हमारा मतलब बैकफायर भी कर सकता था। उसको हमने पॉजिटिव वे में लिया कि नहीं चलो जीते हैं। और हमारे जो ये यंग ब्लड्स है, अभीस हो गया, प्रिवेल हो गया, ये कभी WC खेले नहीं थे, तो उनको प्रेशर इतना आता नहीं था। बेशक लन और मेरे में प्रेशर ज़्यादा था मेरे पे,
कि है, लेकिन हमको आता था कि हैंडल क्या है। इन पे इतना नहीं था। वो पॉजिटिव लाए हम कि जीतना है, जीतना है, जीतना है। उसके बाद फर्स्ट डे खत्म हुआ और हम क्वालीफाई कर गए। मैं और लन इतने खुश हो गए, इस बारी क्वालीफाई कर दिए। अब क्वालीफाई हुए तो आगे को तोड़ के ही जाएंगे। फिर दूसरा तीसरा दिन तो क्लियर करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इधर तक आए। क्योंकि जो कॉल ऑफ ड्यूटी का जो वर्ल्ड चैंप्स रहता है ना, उसमें फर्स्ट डे बहुत मुश्किल रहता है कंपेयर टू सेकंड डे और थर्ड डे। फर्स्ट डे बहुत हेक्टिक होता है, क्योंकि आप 16 टीम्स compete करने जाती है, ठीक है? और फर्स्ट डे पे 8 टीम बाहर निकल जाती है, 8 टीम। तो वो बहुत हेक्टिक रहता है। हमने सुबह 7-8 बजे से हमारा शेड्यूल शुरू हुआ था, बसेस आ गई थी वेन्यू से, और रात को हम कितना 7-8-9 बजे तक हम फ्री नहीं हुए थे। मैचेस लगातार लगातार, हमारा फास्ट गेम पेस होता है। बेस्ट ऑफ 3 के मैचेस थे हमारे, तुरंत कितने 4-5 थे। बहुत हेक्टिक रहता, तो वो उस दिन फिर वो एक फर्स्ट डे का मस्त था। फिर सेकंड डे हमारे सामने एसपीजी थी, उसका भी बहुत अच्छा स्टोरी है कि एसपीजी एसएनडी में बहुत स्ट्रांग थी, और हमने उनको 7-2 और ऐसे ही वन साइडेड हराया था। तो वो एक क्वालीफाई कर दिए, सेकंड डे निकाल दिए। फिर मैं और लन ज़्यादा खुश कि ग्रैंड अभी सेमीफाइनल्स में आ गए, अब तो मारेंगे ही मारेंगे। वो अलग खुशी होती है, कि Yeah, yeah, इतने yeah. टाइम पे जब हम हार के गए थे, अभी सेकंड भी क्वार्टर फाइनल्स निकाला, अब सेमीफाइनल्स में आ गए। तो अब मेरा और लन में हो गया था कि सेमीफाइनल में देख के ही जाएँगे, अभी आए हैं तो जीत के जाएँगे अब। तो सेमीफाइनल्स तो फिर पूरी इंडिया ने देखा है कि क्या हमने कर दिया, 7-0 भी कर दिया, बहुत अच्छा। वो जो हमारा पेस था वो सही रहा। तो यही छोटी-छोटी स्टोरीज़ थी। और Yeah. सबसे बेस्ट स्टोरी आई गेस सबको लगी होगी कि हमने सेमीज़ जीतने के बाद जो वो तिरंगा लहराया, वो वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज़ मैं बोलूँगा, बेस्ट फीलिंग्स आई गेस। हाँ, मतलब कुछ भी जीत के आए हम लोग, लेकिन सबसे बेस्ट फीलिंग तो ये होती है कि यार तुम यूएसए में हो, ठीक है, किसी और देश में जाके अपनी कंट्री का फ्लैग प्राउड के साथ लहरा रहे हो, और वहां पे मतलब कम से कम 8-10 कंट्री की टीम है और वो सब तुम्हें सपोर्ट कर रही है। तो ये जो फीलिंग होती है ना यार, ये भाई, ये तो भाई आखिरी दम तक साथ में रहेगी ऐसा। नेक्स्ट लेवल फीलिंग होती है। Nice, nice. But Neutrino also mentioned that there are mistakes that you guys made the first time you went. Abhis, I just want to ask you, what is a mistake in Call of Duty? Like when we play like these traditional sports, we've seen it so much, we know what a mistake is. But in Call of Duty, what is a mistake for you? What are the mistakes you want to avoid when you're playing? आई गेस कॉल ऑफ ड्यूटी हैवी टीम बेस्ड गेम है, जैसे समझ सकते हो फुटबॉल। सो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टीम प्ले। तो अगर फुटबॉल में जैसे इफ वन पर्सन डज नॉट गिव द राइट पास, ठीक है, अगर वो पास सही जगह नहीं पहुंचाएगा, या ही डिसाइड्स पुअरली हु टू पास द बॉल, so that is then that affects the team. Same thing happens in Call of Duty, ठीक है? अगर हमारे में से 5 में से कोई एक बंदा भी मिस्टेक करता है ना, तो वो बाकी चारों को अफेक्ट होती है। वो एक मिस्टेक उसकी पर्सनल मिस्टेक नहीं रहती, उससे चारों बंदों को अफेक्ट अफेक्ट होता है। चारों बंदे उस मिस्टेक से अफेक्ट होते हैं। तो उस एक मिस्टेक को कवर अप करने के लिए 4 बंदों को एक्स्ट्रा चीज़ करनी पड़ती है, ताकि वो एक मिस्टेक कवर हो जाए। तो यू इमेजिन कि हमको कितना कम स्टान मतलब हमारे पास मार्जिन ऑफ एरर तो बहुत कम रहता है। क्योंकि अगर हमने से किसी दो फॉर एग्जांपल 2 पीपल मेड मिस्टेक्स, ठीक है? कोई एक पर्टिकुलर रोटेशन में, ठीक है? 2 जनों ने मिस्टेक कर दी, तो हम लोग वो पूरा पॉइंट हार जाएँगे। मतलब वो पूरा गे मैप हार सकते हैं अपन, वो इतनी क्रिटिकल मिस्टेक हो सकती है। देयर इज़ अ मोड कॉल्ड हार्ड पॉइंट, ठीक है? उसके अंदर ऐसा रहता है कि यू हैव द फर्स्ट वन टू रीच 250 पॉइंट्स विन द गेम, एंड देयर आर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स दैट यू हैव टू कैप्चर फॉर 60 सेकंड्स, ठीक है? द ड्यूरेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स आर 60 सेकंड्स। उसमें से आप Hmm. जितने भी सेकंड कैप्चर करते हो, उतना आपको पॉइंट्स मिलते हैं। इफ यू कैप्चर 35 सेकंड्स तो 35 पॉइंट मिल जाएंगे Okay. आपको। Okay. तो देयर आर समथिंग कॉल्ड मनी हिल्स इन दोज गेम इन दैट गेम मोड। तो मनी हिल होता है कि इफ यू लूज कंट्रोल ऑफ दैट हिल, मतलब इफ यू लूज कंट्रोल ऑफ दैट ऑब्जेक्टिव, इट द होल आउटकम ऑफ द गेम इज डिपेंडेंट ऑन दैट ऑब्जेक्टिव। अगर वो ऑब्जेक्टिव आपके पास रहा तो आप गेम जीत सकते हो, अगर आपके पास नहीं रहा तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू विन दैट गेम। तो वो वो मिस्टेक्स एंड वो थिंग्स हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, क्योंकि दैट affects the whole team and affects the whole outcome. Even one small mistake can do that. Yeah, can you guys tell us a bit about what would be a mistake in Call of Duty? Because, for example, in football, I think if you score an own goal or
Yeah, like you said, a misplaced pass would be a mistake, right? Like what is a mistake or a drop catch in cricket? कॉल ऑफ ड्यूटी में मिस्टेक्स होगा, एक होगा कि सुसाइड नेट खुद को ही उड़ा दिया, यूटिलिटी से खुद को उड़ा दिया। दूसरा हो गया कि इसमें इतना खुद को इतना नहीं होता, लेकिन गलत रोटेशंस दे दिए, या फिर तुम इंडिविजुअल गन फाइट्स हार गए, क्रूशियल गन फाइट्स हार गए, तुम सामने वाले को मार नहीं पाए, या फिर तुमने सही टाइम पे सही जगह पे नहीं गया। मनी हिल्स जैसे बोले कि हम मनी हिल्स पे कंट्रोल नहीं बनाया, ज़्यादा एग्रेसिव हो गए, ज़्यादा पैसिव हो गए, ये सब गलतियाँ मानी जाती है इसमें। गलत रोटेशंस एज़ इन वो क्या होती है? आई मीन अगेन आई जस्ट वांट मैप, टू या अंडरस्टैंड। सो मैप होता है। तो हार्ड पॉइंट में क्या होता है कि 60 सेकंड्स, जैसे एक घर है, बराबर है? एक मैप ले लो आप, मैप। तो जो 60 सेकंड्स है वो कोई अलग घर पे बना है, हमें वहाँ पे जाना है, राइट? ओके। अभी वो 60 जैसे ही खत्म होता है तो हमको दूसरे घर में जाना होता है, जो मैप के ऑपोजिट साइड होता है। हुँ। तो ये जो ट्रांजिशन होता है उसमें रोटेशंस आते हैं कि कौन सी टीम पहले वहां पे जा रही है, कौन से टीम्स एडवांटेज स्पॉन्स को कैप्चर कर रही है, कौन सी टीम्स पहले हिल में चली गई जो कैप्चर एरिया होता है, उसमें कौन सी टीम पहले चली गई। तो ये रोटेशंस होते हैं। तो वो रोटेशंस गलतियां नहीं करने की, ये सब जो ट्रांजिशन और ये स्ट्रेटेजी होती है वो सब गलतियों में माना जाता है। Also, there are certain guns that are banned. मतलब जो भी गन आपको कॉल ऑफ ड्यूटी में रहती है वो यूज सारी गन्स आप यूज नहीं कर सकते। एक सेट ऑफ गन्स रहती है विच आर अलाउड इन कॉम्पिटिटिव, लाइक अनलाइक यू कैन से लाइक काउंटर स्ट्राइक। तो काउंटर स्ट्राइक में जो भी गन्स आप बाय कर सकते हो आप सब गन्स यूज कर सकते हो, बट दैट इज नॉट द केस इन कॉल ऑफ ड्यूटी। कॉल ऑफ ड्यूटी में एक सर्टेन सेट ऑफ गन्स रहती है जो आपको ऑलरेडी से बता कर रखते हैं कि दीज गन्स आर अलाउड, यू कैन यूज अमंग्स दीज गन्स, ऐसा। तो ओके। सिर्फ उन्हीं गन्स में यूज कर सकते हो। एंड ऑल्सो जो उसने ट्रांजिशंस के बारे में बोला एंड स्पॉन्स के बारे में बोला, इट इज बिकॉज कॉल ऑफ ड्यूटी इज अ रीस्पॉन गेम। Like two of the हुँ, game modes out of the three are a respawn. So if you die, you'll spawn again, and every time you हुँ। die, you spawn at a different place. So that राइट, is how ओके। we transition, and that is how we take control of spawns. Okay, okay, interesting. Learn in just again a very general question. What does this sort of do? What does mobile gaming do for in putting India on the sort of esports map? How important do you think it is? कंपेयर टू वेस्टर्न कल्चर हम लोग काफी पीछे थे गेमिंग में, क्योंकि दे हैव इजी एक्सेस टू पीसी कंसोल्स। लेकिन इंडिया के पास जब से मोबाइल एक्सेस है, इंटरनेट काफी, मतलब टेक्नोलॉजी वाइज इंडिया काफी इंप्रूव किया है पिछले कुछ साल में। तो इंडिया को जैसे ही एक्सेस मिला, देखो टैलेंट बहुत है हम लोग के पास। इंडिया इज अ वेरी बिग मार्केट फॉर व्यूअरशिप। बहुत पोटेंशियल प्लेयर्स हैं यार, जो भाई वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत सकते हैं, हमसे भी अच्छे प्लेयर हैं इंडिया में। तो आई थिंक इंडिया इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन इन मोबाइल इंडस्ट्री राइट नाउ। और अगर कोई भी स्पोर्ट्स या कोई भी गेम या फिर कुछ भी चीज कंटेंट से लेके, एवरी मार्केट शुड कंसिडर इंडिया। क्योंकि यार इंडिया, मतलब भाई, अब सबके पास है स्किल्स और सबके पास एक्सेसिबिलिटी है मोबाइल गेमिंग की। तो मोबाइल इंडस्ट्री में वी आर हेड टू हेड। आप देखोगे तो पीसी इंडस्ट्री में हम लोग इतना सक्सेसफुल नहीं रहे, क्योंकि हम लोग के पास इतना एक्सेसिबिलिटी नहीं थी चीजों की। लेकिन मोबाइल इंडस्ट्री में आप कोई भी गेम ले लो, सब प्लेयर भाई टक्कर देने वाले हैं। वी हैव द व्यूअरशिप। मोबाइल गेमिंग में भाई लोग बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स बन चुके हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स बन चुके हैं, सब कुछ हम लोग इक्वल है। और हम लोग वो लेवल पे है ना कि अगले 5 साल में अगर ये प्लान चलता रहा ना, तो इंडिया के जो गेमर्स है और जो मोबाइल इंडस्ट्री है, वो यार रिकॉर्ड्स तोड़ देगी इन फ्यूचर। Okay, that's great to know. I mean, guys. So usually when somebody asks like a normal like people who do play other sports, like what do you do in your free time? I say that's when I play sort of FIFA or somebody plays Call of Duty. But what do you guys do in your free time? Prevail, what do you do? What do you enjoy sort of doing in your free time when you're not sort of practicing for Call of Duty? I mean, it's rare for us to ever get free. We like take one day off in a week, but that also is rare because we have tournaments and all. But in free time, I would say we just like as a team we sit together, drink a coffee, drink a tea, chill together, and watch some movies. Sometimes we go out together. And I have college mostly, so I go college. I come back to the boot camp and play Call of Duty, and yeah, that's it. We just like to go out, and because most of the people in the team are from like Ahmedabad, Gujarat, Indore and all, we try to explore Mumbai. And since I'm from Mumbai, I just like take them to different places and all. लेकिन कभी कभी फ्री टाइम में हम लोग क्या कहते हैं कि लाइक हम लोग गेमर्स है ना,
तो भले हम Yeah. गेम से फ्री टाइम लेके हम दूसरी गेम खेलते हैं, कभी कभी गेम ही खेलते हैं Okay. फ्री टाइम में। Okay. Okay. Which games then? कॉल ऑफ ड्यूटी भी खेलते हैं, माइनक्राफ्ट, वैलोरेंट। हम लोग माइंड रिलैक्स करने के लिए, मतलब यार हम लोग कॉम्पिटिट तो कर ही रहे हैं, अब मेंटली रिलैक्स करने के लिए गेमिंग ही कर रहे हैं, तो है तो गेमर ही। Okay. मतलब वो Nice. छुट्टी के टाइम पे क्या होता है कि कॉल ऑफ ड्यूटी हम खेल रहे हैं लेकिन मस्ती मजाक के लिए, नाइफ लेके भाग रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, तब हम मतलब हम न्यूट्रिनो न्यूट्रिनो नहीं होता, तब एक कैजुअल प्लेयर हो जाते हैं एकदम, दिमाग इतना नहीं। लेकिन हाँ, कोच ने ये बोला है कि कॉल ऑफ ड्यूटी नहीं खेलने का वो छुट्टी के टाइम, तो हम लोग माइनक्राफ्ट खेलते हैं, वैलो खेलते हैं, या कभी कभार नीचे जैसे गॉड लाइक जो बाकी मेंबर्स हैं उनके साथ क्रिकेट खेल लिए, ये ऐसा सब करते हैं। Oh, nice, nice. Guys, any favorite games apart from Call of Duty that you guys have? I have one. I Okay. really enjoy playing Valorant. Okay. Okay. Is that something that you started before Call of Duty or? Oh no, no. I started बीच में I was in a team and I in a Call of Duty team before this team. तो उस टीम में मैं बेंच था. I was not eligible. मतलब मैं सिक्स प्लेयर था उस टीम का. तो during that time I played a lot of Valorant क्योंकि मैं Call of Duty खेलने की opportunity नहीं मिल रही थी उस टाइम पे और मेरे को टीम में जगह नहीं मिल रही थी, तो मैं Valorant खेल रहा था बूट कैंप पे बैठे बैठे. And I उस टाइम पे मैंने Valorant के लिए एक मतलब sort of थोड़ा सा मतलब प्यार था जो जगह. और मतलब हम जब वैलोरेंट खेलते हैं, वैलोरेंट तो अपना यही है, सर्च एंड डिस्ट्रॉय जैसे ही होता है। तो जब हम मतलब वैलोरेंट खेलते हैं तो मतलब फिर हम आके जब कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हैं ना, तो हम लोग को ऐसा लगता है भाई कि और मतलब कुछ समझ रहा है हम लोग को, और कुछ करने मतलब समझ रहा है, क्योंकि कॉल ऑफ ड्यूटी में भी सर्च एंड डिस्ट्रॉय है, तो हम लोग को मतलब ऐसे एक आइडिया आ जाता है कि और क्या कर सकते हैं हम लोग। थोड़ा सा लिंक्ड रहता है, तो मतलब तो कुछ बेसिक जो स्ट्रैटेजीज रहती है बॉम्ब डिफ्यूजल मोड की, वो सारे गेम्स में सेम ही रहती है कि यू नीड टू स्टॉल सम टाइम कभी, या वो तो हर चीज एक्चुअली कहीं ना कहीं अगर कॉल ऑफ ड्यूटी से ब्रेक लेकर कोई दूसरा गेम भी खेलते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमको हेल्प करता है गेमिंग के लिए. जैसे वैलोरेंट खेला तो वैलोरेंट में भी रिफ्लेक्सेस बहुत काम आते हैं, तो वो उससे रिफ्लेक्सेस इंप्रूव हो जाते हैं, तो हमको हमारे गेम में कॉल ऑफ ड्यूटी में भी काम आता है वही चीज. इसीलिए मेरे को GTA 5 पसंद है, दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है। मस्त बिंदास करो, गाड़ी चलाओ शांति से, जो करना है करो। Privel, you said you were in college, and when I was in college, I remember there were a lot of people who were in sort of their rooms playing PUBG, very intense PUBG. They're like 8 boys, 9 boys, 10 boys sitting and playing together. Does that happen to you in college? Do you still sort of go and play with your friends in college? I mean, I'm in first year, right? So I just like recently started going college. I mean, not recently, like 4 months back. So Okay, okay. there's like this huge area in our college where all the like students chill. So when I used to go to the college that time, I used to see all the people playing BGMI and all. And so I was like, I don't play BGMI a lot, so I used to just go in my lectures. So like when we placed #2 in the World Championship, like a lot of people in my college came to know what I actually play, because when I Okay. used to go to the college, I didn't tell people what I actually do, or if I'm an esports player, I didn't tell them that. So when we placed #2, all the people in my college came to know that I came #2 and my team is godlike. So the next day I go to the college, I see all of the people playing Call of Duty sitting in that huge area. So that's like that was like a good experience for me, like seeing all the people in my college playing Call of Duty. And yeah, it's, I mean, pretty hectic to manage college and esports all together, but uh, if you're like good enough to manage them both, it'll be like easy only, because if I Okay. play esports in the evening and go to the college in the morning, it's fine. Learn, just coming to you quickly before we wrap up, what is the future for Godlike? What do you guys expecting going forward? And yeah, apart from Call of Duty, what are the other areas that Godlike are sort of looking in? गॉडलाइक आई थिंक इज अ बिग एंटिटी, बहुत पुरानी ऑर्ग है, Hmm. एंड इंडिया का जो करंटली स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का बेस है वो बीजीएमआई है, बिकॉज लॉट ऑफ व्यूअरशिप, लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉट ऑफ टीओस आर इंटरेस्टेड इन होस्टिंग बीजीएमआई टूर्नामेंट्स. हम लोग खेलते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, काफी कम लोग जानते हैं, लेकिन जो भी जानते हैं काफी अच्छे से सपोर्ट करता है. और गॉडलाइक का फ्यूचर तो यार देखो बहुत अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि आप एक नंबर्स देखोगे ना, तो गेमिंग इंडस्ट्री इज गोइंग टू बिकम सो बिग कि भाई वो सब इंडस्ट्री को पीछे छोड़ देगी इंडिया में. सो इन माई थिंक आई थिंक आई एम प्लेइंग कॉल ऑफ ड्यूटी राइट नाउ, एंड आई
also make content and all for the young people to understand my game. उनको समझ आए कि भाई ये गेम कैसे वर्क करता है, how to play this game, how to become an esports player, जर्नी कैसे स्टार्ट करते हैं, how do you make more content, because ये इंडस्ट्री ग्रोइंग पीरियड में, एंड बीइंग इन गॉड लाइक दे हैव सपोर्टेड अस अ लॉट, क्योंकि जैसे बोला कि 2022 में हम लोग लास्ट आए थे, वी डिडंट विन एनीथिंग, स्टिल गॉड लाइक बिलीव्ड इन अस भाई। उस टाइम पे मतलब लास्ट था ना, वो भी कॉल ऑफ ड्यूटी जैसी गेम में, नो और कैन अफोर्ड इट भाई, बिजनेस है सीधा। तो बट स्टिल दे ट्रस्टेड अस, दे केप्ट अस, उन्होंने हम पे भरोसा किया, क्योंकि उन्होंने देखा था कि यार हमने मेहनत तो की थी यार, बट अनफॉर्चुनेटली हम परफॉर्म नहीं कर पाए। सो एक साल हमने मेहनत किया, दे सपोर्टेड अस, वी प्रूव्ड इट, एंड नाउ गॉड लाइक इज वेरी हैप्पी विद अस, एंड गॉड लाइक इज मोर लाइक अ फैमिली। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई एक टूर्नामेंट के बेसिस पे तुम्हें निकाल देंगे या फिर तुम्हें जज करेंगे बहुत जल्दी। तुम कैसे इंसान हो, तुम कितनी मेहनत करते हो भाई, आज नहीं तो कल तुम अच्छा करोगे कि नहीं, उस बेसिस पे वो लोग तुम्हें ट्रीट करते। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने ई स्पोर्ट्स एज अ करियर ऑप्शन सिलेक्ट किया है, और ये इंडस्ट्री में आई एक्सपेक्ट कि यार आगे जाके मोर कंटेंट, मोर ई स्पोर्ट्स, गॉड लाइक भी एक बड़ा एंटिटी बने, जो कि इंटरनेशनली बाकी जो कंपनीज अभी बाकी कंपनीज जो ये इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड है उसके लेवल पे compete करें। वी हैव एवरीथिंग रेडी, वी आर ऑन द प्रोसेस। तो अगले 5 साल में आई थिंक कि गॉड लाइक एंड आई पर्सनली सी माई सेल्फ एंड मेरी टीम जो है वो काफी सारे अचीवमेंट्स के साथ होगी। सो या Okay, guys. Thanks so much. All the best to you guys as well. And again, thank you for taking this time out and talking. Learn Gaming, Abhi's, Prevail, and Neutrino, the boys from Godlike who did so well last year. And yeah, hope you guys continue the same. Thanks, guys. Thank थैंक you, Thank you so यू thank much. you. Thank you so फॉर द much. अपॉर्चुनिटी। Thank you for inviting us.